in Shefali, we got the opportunity to honor womanhood, the architect of the world. We feel really honored to have such a wonderful and inspiring personality, Ms. Anuj Nehra ma'am, SDM of Dadri, and Mr. Atul Bharadwaj, Bureau Chief of Amar Ujala, Vedar. Please give them a huge round of applause and welcome them. I request our principal ma'am to please welcome both the personality with the sapling. किसी के शुभ आगाज के लिए दीप प्रज्वलन की हमारी सांस्कृतिक विरासत रही है। इसी परंपरा के साथ मैं चाहूंगी कि हम आज की इस गोष्ठी की शुरुआत करें, जिसके लिए मैं अपने गणमान्य अतिथियों व अपनी प्रधानाचार्य महोदया जी को आमंत्रित करती हूँ और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि तालियों के साथ आप भी इस प्रतियोगिता में अतिथि देवो भव। भारतीय संस्कृति में अतिथियों का स्वागत दीप जलाकर व नाच गाकर किया जाता है। इसी कार्यक्रम में हमारे विद्यालय के विद्यार्थी एक स्वागत गीत प्रस्तुत करना चाहते हैं। मैं चाहूंगी आप सभी तालियों के साथ स्वागत है छठ
desire to guide and inspire the team to make it possible to achieve these standards. We are fortunate to have such a wonderful leader with us who always support and motivate us to perform well. Now, I would like to request Principal Ma'am to formally initiate the seminar by her inspiring words. Please welcome ma'am. Good morning and a very warm welcome to everyone present here. It's truly an honor for us to host this important seminar on women empowerment in our school today. On behalf of entire school family, I extend my heartfelt gratitude to Amar Ujala Greater Noida Bureau Chief for organizing this program and for choosing our school as a venue for such a meaningful and inspiring event. We feel especially privileged to welcome our distinguished guest, Ms. Anuj Nehra, the proud topper of UPPSC and currently serving an STM. Dadri ma'am, your hard work, dedication and achievement are an inspiration for all of us, especially for the young students who dream of making different in the society. Your presence here today has immense value to this seminar and we are certain that your thoughts and its experiences will motivate everyone present here. I also take this opportunity to thank all the dignitaries, teachers, my students and participants who have gathered here to join hands in spreading awareness about women empowerment, a cause that truly shapes the future of our nation. Once again, I welcome you all and look forward to this enriching and inspiring session here. Thank you so much, everyone. Very good morning to all of you. First of all, thank you so much, Shefali Public School and Amar Ujala team for inviting me here. आज का हमारा टॉपिक जो यहाँ पे लिखा भी है, ये जो सेमिनार हमने ऑर्गेनाइज करा है, ये विमेन एम्पावरमेंट पे है। इनफैक्ट मैं भी मैम से पूछ रही थी कि यहाँ पे सारी गर्ल्स क्यों हैं, बॉयज़ क्यों नहीं हैं, क्योंकि विमेन को एम्पावर होने के लिए काउंटर पार्ट की उतनी ही रिक्वायरमेंट है जितनी हम लोगों को खुद की है। तो लेट मी स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन फर्स्ट। मेरा नाम अनुज नेहरा है, मैं पानीपत हरियाणा की रहने वाली हूँ। मेरी इनिशियल स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय नेफल पानीपत से हुई। उसके बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से हंसराज कॉलेज से केमिस्ट्री ऑनर्स किया। केमिस्ट्री ऑनर्स करते हुए भी मेरे को बिल्कुल ना, क्योंकि फैमिली में कोई सर्विसेज से था नहीं, गवर्नमेंट सर्विसेज से एज सच, सिविल सर्विसेज साइड से, तो मुझे लगा कि शायद मुझे भी ग्रेजुएशन करना होगा, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करना होगा, उसके बाद देखते हैं आगे क्या होगा। फिर जब मैं दिल्ली पढ़ने गई हंसराज कॉलेज से, कट ऑफ थोड़ी अच्छी थी स्कूल में, 12th में मार्क्स अच्छे थे, इसलिए कॉलेज भी बहुत अच्छा मिल गया था। फिर उसके बाद मेरी मम्मी ने बोला एक दिन कि सिविल सर्विसेज कुछ होता है, एक सीरियल आता था अफसर बेटे, आप सब लोगों ने देखा होगा शायद, हमारे टाइम पे चलता था, पता नहीं है या नहीं है। तो मम्मी उस सीरियल को देखा करती थी। तो मम्मी ने एक बार फ़ोन पे बोला कि ये जो अफसर बनते हैं उसके लिए कौन सा एग्ज़ाम देना होता है, तुम उसको देखो और एक बार अगर हो सके तो उसके लिए प्रिपरेशन करना। तो जिस पीजी में मैं रहती थी वहाँ पे एक बहुत सीनियर दीदी थी, वो यूपीएससी की तैयारी करती थी, वो अपने आप को रूम में पूरा लॉक रखती थी, पूरा दिन पढ़ती रहती थी। मुझे लगता था इतना पोटेंशियल तो मेरे अंदर नहीं है, फिर भी मैंने मार्केट जाके एक बार बुक्स खरीदने की कोशिश की, देखा, जीएस की बुक लेके आई। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, पता नहीं आप लोगों के लिए कितना वैल्यूएबल होगा, बट मुझे लगा कि किसी भी चीज़ पे बोलना, अपने बारे में अगर हम बताएं, अपनी स्टोरी को बताएं, तो सुनने में भी सामने वालों को इंटरेस्ट आता है। अगर मैं कुछ बहुत भारी भारी भरकम हुई स्पीच रेडी करके यहाँ पे लेके आऊँ जो आप सब लोगों के लिए बोरिंग हो जाए। तो फिर मैंने प्रिपरेशन जब शुरू की तो मुझे लगा शायद ये इतना टफ भी नहीं है, हो सकता है। फिर मैंने यूपीएससी का फर्स्ट अटैम्प्ट दिया। फर्स्ट अटैम्प्ट के लिए मैंने ऑन द प्रिपरेशन उतनी ज़्यादा नहीं की थी, जस्ट मुझे देखना था कि एग्ज़ाम का माहौल कैसा होता है। स्कूल में बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, 90s में रहते थे। कॉलेज में क्योंकि वो एक आपका फिक्स टारगेट होता था कि एक ये सिलेबस है, इसको पूरा करके आपको एग्ज़ाम देना है और रिजल्ट लेके आना है। तो जब तक उस सिनेरियो में चल रहे थे तो मुझे कॉन्फिडेंस भी बहुत था कि एग्ज़ाम है, इस एग्ज़ाम को मैं जितना इसका सिलेबस है उसको पढ़ूंगी और मैं इसमें टॉप कर जाऊँगी। इस माइंड सेट से आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन। और मुझे लगा एक बार एग्ज़ाम में बैठ के देख लेते हैं कि क्या इसका ओवरऑल ऑरा क्या है इस एग्ज़ाम का। तो
तो जब मैंने यूपीएससी का फर्स्ट अटेम्प्ट दिया 2015 में, तो पेपर देने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये उतना भी ईजी नहीं है, या स्कूल कॉलेज वाली बात नहीं है जहाँ हम थोड़ा सा पढ़ेंगे और हमारा एग्ज़ाम बहुत अच्छा निकल जाएगा। तब वो फर्स्ट फेलियर था मेरी लाइफ का, अभी तक का 2015 तक का, कि जो मुझे लगता था कि हम तो पढ़ सकते हैं और कुछ भी निकाल सकते हैं, तो वो मेरा वहम जो था वो वहाँ पे दूर था। तब फिर मैंने सीरियस प्रिपरेशन शुरू की। फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद 2015 के बाद 2016 में मैंने अपना सेकेंड अटेम्प्ट दिया, जिसमें मेरा प्री फिर से नहीं हुआ। इस बार पढ़ने के बाद और मैंने अपने नंबर ऑफ आवर्स को फिक्स किया कि 7 से 8 घंटे मुझे पढ़ने हैं। अपने IAS एग्ज़ाम के लिए सफिशिएंट है, उतना मैं टाइम देती थी और सिंसियरली पढ़ती थी। सारी चीज़ों को कट ऑफ कर दिया, कॉलेज के सारे ग्रुप को छोड़ दिया। फिर उसके बाद भी नहीं हुआ मेरा। तब मुझे लगा कि शायद ये है ही नहीं, या मुझे दूसरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए। फिर वही कि मुझे लगता है हर लड़की सबसे ज़्यादा अटैच अपनी मम्मी से होती है, तो फिर मम्मी ने बोला कि एक और अटेम्प्ट दो, उसके बाद हम देखते हैं। क्योंकि ऑब्वियसली मैं भी पानीपत से हूँ, जहाँ पे हम सब लोगों को पता है जेंडर इशू में सबसे नीचे हमारा स्टेट रहता है। हमेशा ये रखा जाता है, प्लस जिस गांव से भी मैं बिलोंग करती हूँ वहाँ पर भी ये रहता है कि ये मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि मुझे दिल्ली पढ़ने भेज दिया गया। अदरवाइज़ मेरी लोकेलिटी से सब लोग वहीं पे स्कूलिंग करते थे, वहीं कॉलेज करते थे, फिर शादी हो जाती थी, वहीं लाइफ खत्म हो जाती थी और वी कैन से नई लाइफ शुरू हो जाती थी। बट मेरे केस में मम्मी ने मुझे फिर से बोला कि अब तो दोबारा से दो। फिर मैंने प्रिपरेशन की, इस बार मेरा प्रीलिम्स निकल गया, मेरा मेंस रह गया। तब फिर मुझे लगा कि अब फिर एक जो जहाँ से मुझे लगता है कि आज जहाँ पे हूँ मैं, वो जो डिसीजन था उस दिन का, जिसकी वजह से मैं यहाँ तक पहुँच पाई, उसके बाद एक मुझे जिद हो गई थी कि नहीं अब तो करना ही है, यही वाला एग्ज़ाम करना है, कुछ हो ना हो और किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन नहीं करनी। फिर मैंने नंबर ऑफ आवर्स भी बढ़ाई, अपनी स्ट्रैटेजी को ओवरऑल चेंज किया, सब कुछ सिलेबस को अपने सामने लगाती थी टेबल पे, उसमें से देख देख के पढ़ती थी कितना मेरा हो गया, कितना रहता है, कैसे करना है, स्ट्रैटेजिकली कैसे करना है, कितने आवर्स को और कम करना है या बढ़ाना है। उन सारी स्ट्रेटेजी के बाद नेक्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्री भी हो गया, मेंस भी हो गया, फिर मेरा इंटरव्यू रह गया। तो ऐसे मेरे 4 अटेम्प्ट हो गए यूपीएससी के। फिर उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं शायद अपनी लाइफ का मैं कुछ ना कुछ हर साल ऑब्वियसली गेन कर रही थी, अपनी पर्सनालिटी में ओवरऑल इम्प्रूवमेंट होती है। आप हर एग्ज़ाम के बाद एक ग्रो करते हो, आपके अंदर बहुत सारी नॉलेज के साथ साथ आपकी पर्सनालिटी भी एनहेंस होती है, आपका बात करने का तरीका, प्लस आप एक ग्रुप में अगर खड़े हैं तो आप इसे डम साउंड नहीं करते, आपको कुछ ना कुछ हर चीज़ के बारे में पता होता है, वो कॉन्फिडेंस आपको देता है। फिर ये PCS का एग्ज़ाम आया तो मुझे लगा कि शायद मैंने इससे पहले कोई PCS का किसी भी स्टेट का, इनफैक्ट अपने स्टेट का हरियाणा का भी मैंने कोई PCS नहीं दिया था, तो मुझे लगा एक बार PCS का एग्ज़ाम दे देना चाहिए। यहाँ पे मैंने उसी साइमल्टेनियसली आई वाज आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर UPSC। PCS के साथ करते करते मेरा प्री हो गया, फिर मेंस भी हो गया, प्री में बहुत अच्छे मार्क्स आए, उसके साथ मेरा एग्रीकल्चरल सर्विसेज का भी हो गया। फिर इसमें करते करते जिस दिन रिजल्ट का दिन था 11 सितंबर 2020 को हमारा रिजल्ट आया था, मुझे लगा था कि इतने फेलियर्स ऑलरेडी हो चुके थे, 4 UPSC अटेम्प्ट आ चुके थे, तो मुझे लगा इस बार भी नहीं होगा। लकीली मेरा नेक्स्ट प्रीलिम्स भी UPPCS का निकल गया था और मेंस के लिए प्रिपेयर कर रही थी मैं जब इसका रिजल्ट आया। तो जिस दिन का रिजल्ट था तो मैं उस टाइम मेरी हिंदी थोड़ी सी वीक थी, मतलब लिखने के लिए ग्रामर का वो सब मेरा वो ड्रॉबैक था, क्योंकि 12th तक हिंदी की नहीं थी, 10th तक हमने हिंदी पढ़ी थी, तो मैं उस टाइम मुहावरे पढ़ रही थी। एक साइड मेरे लैपटॉप खुला हुआ था जिसमें रिजल्ट आना था और एक साइड में मुहावरे पढ़ रही थी। फिर जब मैंने रिजल्ट पे फिर से स्क्रॉल किया, पता लगा कि PCS का रिजल्ट आ गया है, तो वो जब टॉप पे जब अपना नाम देखा तो मुझे लगा कि दिस इज जस्टिफाइड, मतलब एटलीस्ट मैं जो 2015 से लेके 2020 में मैं पहुंच गई, वो मेरी जर्नी जस्टिफाई हो गई। मतलब मैं शायद मैंने जिस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर किया था मैं वो नहीं कर पाई, बट जो मैंने किया उसमें मैंने बेस्ट किया। इसमें भी 13 लाख बच्चे अपीयर हुए थे। 13 लाख बच्चों में जो PCS में फर्स्ट टाइम बैठ रही है, उसमें बहुत सारे लोग थे जो 5-5, 6-6, 7-7 साल से प्रिपरेशन कर रहे थे, क्योंकि PCS में अटेम्प्ट नहीं होते हैं, PCS में एज होती है जनरल कैटेगरी के लिए। तब मुझे लगा कि शायद वो जस्टिफाइड था, वो टाइम जो मैंने इस चीज़ के लिए दिया, वो इमोशंस जो मैंने इसमें यूटिलाइज किए, वो मेहनत, मेरे साथ साथ पूरी फैमिली की मेहनत, क्योंकि शायद हर मतलब दिस इज नॉट बीइंग जेंडर स्पेसिफिक, बट जब एक लड़की मेहनत करती है तो उसके साथ उसका पूरा परिवार मेहनत करता है, क्योंकि
अभी भी बहुत सारे चेंजेस सोसाइटी में आ गए हैं, बट अभी भी उतना नहीं आया कि हमें हमारी जितना हम चाहते हैं ना वहाँ तक हम कर पाए। हमें अपने आप को हर स्टेप पे प्रूव करना पड़ता है। अगर मैं हर साल वो कॉन्फिडेंस अपने पेरेंट्स को नहीं देती कि मैं जेन्युइनली मेहनत कर रही हूँ दिल्ली में रह के, मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रही हूँ, वो बस मेरा शायद वो मेरे स्टार्स मेरे साथ नहीं है कि मैं अभी नहीं कर पा रही हूँ, बट एक दिन आएगा कि मैं कर दूँगी। वो मेरे पेरेंट्स के लिए बहुत था, उनके कॉन्फिडेंस को रखने में और उस फिगर और उस रील को मेरे अंदर रखने के लिए भी। तो जब ये रिजल्ट आया उसके बाद बस इसका एक ड्रॉबैक ये हुआ कि मैंने यूपीएससी की तैयारी छोड़ दी, क्योंकि मेरी पूरी फैमिली में कोई सर्विसेज में नहीं था, तो हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। तो इसके पीछे का मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि अगर जैसे हम लाइफ में देखते हैं कि फेल्योर आ गए, अगर हमारे किसी सब्जेक्ट में बहुत कम मार्क्स आए हैं, हमें लगता है कि अब क्या होगा, अब ये तो मेरी एंड ऑफ लाइफ हो गया है। अगर यही मैं 2015 में या 16 में सोच चुकी होती तो शायद मैं किसी बैंक की नौकरी कर रही होती है। कोई जॉब छोटी बड़ी नहीं होती है, बट एटलीस्ट जो मैंने अपने लिए चूज किया था उससे वो बहुत नीचे होता। तो दिस इज ऑल अबाउट कि हम अपने ड्रीम्स को कहाँ सेट करते हैं और हम उन ड्रीम्स के साथ कहाँ तक कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार हैं, वही आपकी सक्सेस को डिटरमाइन करती है। प्लस जो भी मतलब हम लोगों का रहता है कि हम बोल देते हैं कि हमारे फैमिली से हमको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, या हमें हमारे घर में उतनी कंडीशंस ऐसी नहीं है कि जो हमें सपोर्ट करें। तो ये सारी कंडीशंस, फैमिली का सपोर्ट, भरोसा, ये सब हम लोगों पे होता है। हम लोग अगर किसी के भी पेरेंट्स ऐसे नहीं है कि आप दिन रात पढ़ रहे हो वो बोलेंगे कि नहीं हम तुम्हें पढ़ने नहीं देंगे। वो कॉन्फिडेंस हम लोगों को लाना पड़ता है पहले खुद के अंदर, फिर वो कॉन्फिडेंस हमें देना पड़ता है अपने पेरेंट्स को कि हम करेंगे और हम बहुत अच्छे से करेंगे। तो जिस भी चीज़ की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको जिस भी एग्जाम के लिए जाना है उसमें प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। कि अगर मेरे 12th तक 90s में मार्क्स रहते थे, 80%, 80 से परसेंट मैंने कभी नीचे देखा ही नहीं था। कॉलेज में भी मेरा ओवरऑल एग्रीगेट 90% था, बट इट डजंट मीन कि मैं हर चीज़ में टॉपर रहूँगी, कि मैं जिस एग्जाम में बैठूँगी वो निकाल दूँगी। तो ऐसे उसी अगर उस फेल्योर के बाद मैं छोड़ देती अपने आप को तो शायद सारी चीज़ें पीछे छूट जाती। तो अपनी ड्रीम्स को बहुत हाई नॉच पे सेट करना बहुत रिक्वायर्ड है। फिर उसमें उससे ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत है, तो कि एटलीस्ट हम ऐसे लेवल पे आ जाएं जहां हम अपने आप को लगे कि हाँ हमारी सारी की सारी चीज़ें जस्टिफाई हैं, उसमें किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। अब की चीज़ें बहुत बदल गई हैं। आज से 10 साल पहले मैं 9th was प्रिपेयरिंग, हमारे पास मैं आज तक मेरा किसी भी चीज़ में ना फेसबुक पे, व्हाट्सएप मैंने तब इंस्टॉल किया है जब मैं ट्रेनिंग के लिए उसाम में गई थी। उससे पहले मेरे फ़ोन में व्हाट्सएप भी नहीं था, ना मुझे पता था, क्योंकि मुझे ऑपरेट करना भी नहीं आता था। तब मैंने फर्स्ट टाइम व्हाट्सएप इंस्टॉल किया क्योंकि वहाँ पे नेसेसिटी थी। दिस इज नॉट अबाउट कि सोशल मीडिया बहुत ख़राब है, बट सोशल मीडिया के साथ ऑफकोर्स डिस्ट्रैक्शंस आती हैं। आप एक मैसेज करेंगे, फिर आप 10 मिनट तक उस मैसेज के रिप्लाई का वेट करेंगे, तो वो पढ़ते हुए थोड़ा सा उन सब चीज़ों के मेरे टाइम पे ये मेरे लिए सहूलियत थी कि उतना ज़्यादा हाइप नहीं था। ऐसा नहीं था कि मेरे साथ बहुत सारे लोग थे जिनके पास व्हाट्सएप नहीं था। मेरा फेसबुक पे अकाउंट आज तक नहीं है। मुझे नीड फील नहीं पहले पढ़ाई में, और उसके बाद लगा कि अब क्या करना है यूज़ करके, अब तो अपना इतना ज़्यादा बिजी हो गए कि उसको ऑपरेट करने का भी टाइम नहीं मिलेगा। तो किसी सोशल मीडिया से दूर ना रहना वो शायद मेरे लिए एक फैक्टर था कि मैं अगर डिस्ट्रैक्ट भी होती थी तो मैं सिर्फ उस कंपटीशन से हो जाती थी कि यार ये इतना अच्छा कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ। तो वो मेरा थोड़ा सा टाइम फिर भी निकाल देता था कि मैं परेशान हो जाती थी, बैठ जाती थी, बट एटलीस्ट आई वॉज नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी वन। सोशल मीडिया को थोड़ा सा डिपेंडेंट बना देती है, बट पर्टिकुलरली उस टाइम के लिए जब आप प्रिपरेशन करें थोड़ा सा अलूप में रहना या कट ऑफ करना रिक्वायर्ड है, जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि बहुत सारे लोग थे जिनको मैं देखती थी कि वो परेशान होते रहते थे पूरा पूरा दिन। मेरे पास लकीली वो नहीं था, मैं फ़ोन यूज़ करती थी तो अपने पेरेंट्स से बात करने के लिए, भैया से बात करने के लिए। मेरी लाइफ में मेरे भाई भी बहुत बड़ी मोटिवेशन है। मेरा भाई था जिसने स्कूल के बाद मुझे बोला कि हमको इसको पानीपत में तो नहीं रखना है, हम इसको दिल्ली भेजेंगे। पूरी सोसाइटी के आस-पास से भी मैं अकेली थी जो दिल्ली गई थी, बट भैया को भी नहीं पता था। इनफैक्ट जब मेरा नहीं, भैया मेरे डॉक्टर हैं, सर्जन है BL कपूर में, तो उनको लगता था कि इससे अच्छा मेडिकल दिलवा देते, ये तो मेडिकल ही कर ही देती, बट उनको लगता था कि मेडिकल में बहुत पढ़ना पड़ता है, इसलिए उन्होंने बोला कि मेडिकल मत लो, तुम ग्रेजुएशन के बाद कोई एग्जाम दे लेना जिसमें कम पढ़ना लगे। तो उनको लगता था कि इसमें तो उससे भी ज़्यादा मेहनत होगी कि हमारी बहन परेशान हो रही है, बट वो भैया का कॉन्फिडेंस, मेरी मम्मी का, मेरे पापा की रात दिन की मेहनत, और वो मेरी मेहनत के आगे बहुत बहुत बड़ी थी।
जो मुझे मोटिवेटेड रखती थी। बाकी आप में से किसी को कुछ पूछना हो, क्योंकि मेरे पास तो इतनी ज़्यादा बातें हैं कि मैं आपका पूरा दिन भी खा सकती हूँ, बट वो कुछ लड़कियाँ इमोशनल हो रही हैं वहाँ पे। आप में से किसी को कुछ भी अगर पूछना हो तो आप मुझे बताएं, कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या है। Good morning, ma'am. I'm really very happy to see you, and I really wanted to be like you. I have a question: how would you handle the pressure and stressful situation? What's your name? Lavina here. लवी नागर। अभी मैंने बताया ना कि प्रेशर और व्हाट डिड यू आस्क? प्रेशर एंड Stressful situation. प्रेशर और स्ट्रेस सबसे ज़्यादा आता है कि जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं। सपोज आप दोनों रूममेट्स हैं, उसका प्रीलिम्स निकल गया है, उसका कोई और एग्जाम निकल गया, उससे और वो प्रेशर बढ़ता चला गया। तो पर्टिकुलरली मेरे केस में मैं प्रेशर को रिलीज करती थी मम्मी से बात करके और बहुत सारा रो के। मेरा प्रेशर उससे निकल जाता था। प्लस प्रेशर को कम करने का सबसे अच्छा तरीका है, अगर आज आपने 4 घंटे पढ़ा और आपको लग रहा है कि वो सफिशिएंट नहीं है, अगले दिन आप उसको 4.5 कर दीजिए। आप जैसे ही 4 से उसको 8 घंटे करेंगे, वो आपकी ओवरऑल एफिशिएंसी को भी कम करेगा और वो डिग्रेड करेगा, उसको एनहांस नहीं करेगा। इसलिए धीरे धीरे बढ़ाएं। प्रेशर कम होता है कॉन्फिडेंस। जैसे आपको चीज़ों पे कॉन्फिडेंस आने लगेगा, जैसे आपको लगने लगेगा कि हाँ आई एम गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, तो वो ऑब्वियसली अपने आप हो सकती है। तो सबसे अच्छा तरीका यही है कि थोड़ा सा थोड़ी देर मोटिवेशन मेडिटेशन करें। मेडिटेशन के बाद थोड़ा सा अपने आप को और पुश करें कि अगर कल हमने 5 घंटे पढ़ा है, हम 5.5 करेंगे, हम रिवाइज करेंगे। रिविजन करने से भी मैं सिर्फ अभी हम लोग बात करेंगे सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड, राइट? वैसे तो बहुत सारे प्रेशर होते हैं, बट मैं सिर्फ एग्जाम स्ट्रेस और एग्जाम प्रेशर की मैं बात कर रही हूँ, है ना? वो रिलीज होता है कॉन्फिडेंस। जैसे कॉन्फिडेंस आएगा, थोड़ा सा और मेहनत करके या रिविजन करके और एक अपने आप को मोटिवेटेड रखें। Thank you, ma'am. क्योंकि विमेन एम्पावरमेंट का सबसे बड़ा फैक्टर ही यही है कि हम अपने आप को कंसिडर ही नहीं करते हैं कि हम एम्पावर्ड हैं। तो विमेन एम्पावरमेंट तभी आती है जब हम अपने अंदर से सोचेंगे कि हम एम्पावर्ड हैं, तभी विमेन एम्पावर हो सकती है, अदरवाइज नहीं। कोई और आपके लिए उतनी मेहनत कर ही नहीं सकता है, कोई और आपके अंदर उतनी ज़्यादा दिल डाल ही नहीं सकता जितना आप खुद डाल सकते हैं। गुड मॉर्निंग मैम, माय नेम इज श्वेता। मैम मेरी जो आ रही है कि मतलब बहुत डिफिकल्ट होता है कंसिस्टेंट रहना। आप एक टाइम तक कंसिस्टेंट रह पाते हो, बट 1-2 दिन अगर हो गया तो फिर वो 10-12 दिन चले ही जाते हैं। तो हाउ टू बी कंसिस्टेंट, मतलब कितना कंसिस्टेंसी कैसे बना के रखी है? कंसिस्टेंसी यूजुअली हमारी तभी टूटती है जब हम टारगेट बहुत लंबा सेट करते हैं। हमने सब कुछ सोच दिया कि हमें अगला एग्जाम देना है 4 महीने का, तो हमारे अंदर बैक इन द माइंड हमारे है कि अभी तो 4 महीने पड़े हैं। अब अगर हम 2-3 दिन निकाल के देंगे, 4-5 दिन हमारे निकल भी जाएंगे, तो इट इज़ नॉट गोइंग टू मेक एनी डिफरेंस। तभी हमारी कंसिस्टेंसी यूजुअली ब्रेक होती है। बट हमें पता है, अगर हम शॉर्ट टारगेट रखेंगे ना अपना, कि अगर आप वीक का टारगेट लगाएंगे कि मुझे एक वीक में क्वालिटी के 10 चैप्टर्स कंप्लीट करने ही करने, तो वो आपकी कंसिस्टेंसी ब्रेक भी होने लगेगी। तो आपको दिखने लगेगा मेरा टारगेट इस वीक का संडे है, तो वो नेक्स्ट डे आप उसको अपने आप उससे डबल मेहनत करेंगे। क्योंकि वो अपने, मैंने अभी भी बताया ना आपको कि हमें अपने टारगेट्स और हमें अपनी चीज़ों को अपने आप सेट करने की आदत डालनी पड़ेगी। या दूसरा, आप अपने घर में किसी को बोल सकते हैं, जैसे अगर जब मैं स्कूल कॉलेज में जब पढ़ा करती थी, या उसके बाद जब मैंने कुछ प्रिपरेशन शुरू की, मैंने कुछ इनिशियली कुछ टाइम अपने घर से की, तो मैं अपनी मम्मी को बताती थी। ऑब्वियसली शी इज नॉट दैट मच एजुकेटेड, बट मैं उनको बताती थी कि मम्मी मुझे यहाँ पे मैं फ्लैग लगा रही हूँ, मुझे इतना चैप्टर इस घंटे तक करना है। तो वो इतना तो एटलीस्ट देख पाती थी कि तुमने कितना किया है। लिख लिख के पढ़ना और एक एक का टारगेट, छोटे छोटे टारगेट्स बनाएंगे और उसको आप फुलफिल कीजिए। उसके साथ 2 चीज़ें हैं, एक आपके अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आएगा कि आई एम डूइंग, ये मैंने कर दिया है, तो मैं और अच्छा भी कर सकती हूँ, अपना टारगेट भी बढ़ा सकती हूँ। दूसरा, जो कंसिस्टेंसी ब्रेक होने लगती है ना, उसका भी आप लोगों को समझ आने लगेगा कि यार इस तरीके से तो मेरा सिलेबस 3 महीने या 3 साल में नहीं होगा, तो वो अपने आप ही चीज़ होने लगेगी। थैंक यू मैम। Good morning, ma'am. Now, how do you balance your personal life and professional responsibilities after services, after coming into the service? यस, उससे पहले तो पर्सनल लाइफ कुछ होती नहीं ना प्रोफेशनल होती है।
अपने आप को अगर आप ऐसा बना लोगे कि हाँ यही मेरी पर्सनालिटी है और आपको इसी को एक्सेप्ट करके चलना पड़ेगा, तो जो एक्चुअली जिनको आपके साथ रहना है वो आपके साथ रहेंगे, जिनको आपके साथ नहीं रहना है इसका मतलब आपके लिए वो ही है ना। तो वो अदरवाइज आपको डिग्रेड ही करेंगे, आपको पुलबैक ही करेंगे, वो आपको कभी भी मोटिवेट नहीं करेंगे लाइफ। आफ्टर मैरिज तो मुझे लगता है रिक्वायर्ड नहीं है, आफ्टर कमिंग इनटू द सर्विसेज वाला रिक्वायर्ड नहीं, उसमें भी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, इतना डिफिकल्ट नहीं होता। इट्स लाइक कि हम अपने माइंड को हम कितना ज़्यादा अलाउ करते हैं कि आप कितना ज़्यादा उन सब चीज़ों को अपने दिमाग में एंटर करने दो या कितना करो, इट इज़ अप टू यू। और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा शॉर्ट में होती हैं, आप एक बार सीख जाते हैं मना करना किसी चीज़ को। हमारे लिए जो मैंने पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया था जब मैं प्रिपरेशन करती थी, जो मना करना जो होता है वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है किसी भी चीज़ के लिए। बाहर जाना है दोस्तों को मना करना, घूमना है मना करना, खुद को मना करना कि हाँ नहीं यार ये वाली चीज़ नहीं करनी है, मेरा टाइम किल करेगा, वो चीज़ें आने लगती हैं तो चीज़ें अपने आप है। वो उतना ज़्यादा किसी चीज़ पर दिमाग लगाना ही नहीं होता कि हम कैसे बैलेंस करें, बस अपना फोकस रहें कि चीज़ें अपने आप बैलेंस हो। और किसी को कुछ Good morning, ma'am. It's my pleasure here to stand in front of you. I want to ask you that what advice would you like to give to young girls who want to join civil services? अभी तक वैसे जो चल रहा है वो सारे एडवाइस एकदम मैं नहीं देती। देखो एडवाइस तो बस इतना सा है कि आप जब प्रिपरेशन जाइए, जब भी आपको कभी आप मुझे लग रहा है 9th to 12th स्टैंडर्ड के बच्चे ना बैठे हैं, स्पेशली जो 12th में हैं, अगर वो थोड़ा मोटिवेटेड होंगे। 12th से कितने लोग हैं अभी यहाँ पे? उनमें से सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कौन करना चाहता है आगे? दो या तीन बच्चे। तो सिविल सर्विसेज छोड़िए, किसी और भी एग्जाम के लिए जब हमें प्रिपरेशन करते हैं तो 12th में हम लोग अपना माइंडसेट थोड़ा थोड़ा प्रिपेयर करने लगते हैं कि हमें कहाँ जाना है, क्योंकि उसके बाद आपको बीएससी करनी है, बीए करनी है या एलएलबी करनी है, जो भी आगे आपको स्ट्रीम चूज करनी है, तो आपका उसके बाद आपको क्या करना है, सर्विसेज में किसने जाना है, वो डिटरमाइन करती है, राइट। तो जो एडवाइस मेरे एंड से है कि जिस भी एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको सपोज आपको लगता है आपका कैलिबर उतना नहीं है कि आप यूपीएससी निकाल सकते, तो एटलीस्ट आप पीसीएस के लिए प्रिपेयर करो। आपको लगता है आपका कैलिबर पीसीएस निकालने का नहीं है, तो एटलीस्ट आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन करो, जिसमें बहुत सारी सर्विसेज होती हैं। तो जो आपको लगता है कि आप बन सकते हो, आप प्रिपरेशन हमेशा उससे ऊंचे एग्जाम के लिए करो। तो एटलीस्ट क्या पता आपका लक अच्छा हुआ या आपकी मेहनत उतनी होगी तो वही निकल जाए, उससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। अदरवाइज वो एग्जाम तो 100% निकल जाएगा जिसके लिए आपने सोचा है। तो अपनी जो भी चीज़ के लिए आप बैठें कि हमें लाइफ में आगे करना है, टीचिंग के लिए जाना है, प्रोफेसर, तो आप नेट की प्रिपरेशन करेंगे, JRF की प्रिपरेशन करेंगे, उससे थोड़ा हायर नॉच पे अपने आप को सेट करके तब आप प्रिपरेशन करना शुरू करें। उसमें बहुत सारी चीज़ें भी आएंगी, आपकी पर्सनैलिटी भी एनहांस होगी, प्लस दूसरी चीज़ आप वैसा ही ग्रुप चूज करें, तो वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। आप आगे हॉस्टल्स में जाएंगे, हॉस्टल्स में फिट ऑब्वियस है कि ग्रुप बनते हैं, उसमें आप थोड़ा सा वो वाला ग्रुप बनाएं जो आपको मोटिवेट करे। अपने पेरेंट्स की साइड सोचें, क्योंकि जैसे हमारे पेरेंट्स भी होते हैं ना, अगर उनकी कैपेसिटी होती है ना कि हमें सरकारी स्कूल में पढ़ाना है तो सोचते हैं प्राइवेट में पढ़ाना है कि हमारा बच्चा कुछ अच्छा करेगा। वो अपनी कैपेसिटी या अपनी लिमिटेशन को हमेशा पुश करके हम लोगों के लिए करने की कोशिश करते हैं। वैसे ही अगर हम अपने बारे में सोचें तो मेरी यही एडवाइस है कि डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन और परसेवरेंस मीन्स पेशेंस के साथ अगर हम मेहनत करेंगे तो कुछ भी नहीं है जो मुश्किल है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। Good morning, ma'am. Myself Muskan Gaur. I want to ask that what keeps you motivated every day? Every day. Yes. It is not like I am motivated every day. मोटिवेशन हर चीज़ के लिए अलग होती है। सबसे बड़ी मोटिवेशन होती है रिजल्ट। अगर हमें किसी भी चीज़ के लिए मोटिवेट, सपोज अगर अब मैं सर्विसेज में हूँ तो मेरे लिए मेरा रिजल्ट मेरी मोटिवेशन है कि अगर मैं ऑफिस में 1.5-2 घंटा के अगर किसी को कुछ भी अगर उसका एंड रिजल्ट अच्छा आ जाता है और कोई आके अगर आपको उसके लिए थैंक यू बोल के चला जा रहा है तो उससे बड़ी मोटिवेशन है। पूरे दिन की जब महीने भर कई बार ऐसा होता है कि मैसेजेस कि यहाँ पे नोएडा थोड़ा सा एडवांस है तो यहाँ
उनका जब काम हो जाता है वो फिर आगे से हमें बताते हैं थैंक यू सो मच मैम, हमारा 6 महीने से काम रुका हुआ था अब हो गया। तो वो फिर अगली कबार नोटिफिकेशन आती है, फिर हम मैसेजेस को और अच्छे से पढ़ना चाहिए, फिर हम सोचते हैं कि इस चीज़ का और काम हो जाए। या ऐसे ही अगर कोई आपके पास ऑफिस में आएगा, आपने अगर उसके सामने फ़ोन कर दिया और उनका छोटा सा, तो उस बात से भी खुश हो गए कि क्योंकि हर चीज़ मैं अपने एंड पे नहीं कर सकती। बट अगर कोई दिल्ली से या कोई मेरठ से अगर चल के मेरे पास आता है, मैंने उनको, उन्होंने बताया कि मैम बहुत दूर से है, मैंने अगर उनके सामने उनको उस लेखपाल से भी कनेक्ट करा दिया या तहसीलदार साहब के लेवल पे है तो उनसे कनेक्ट करा दिया और बात कर ली, उनको वहाँ भेज दिया, उसी से वो बहुत खुश हो जाते हैं और मेरे तो और मोटिवेशन आती है। मेरा हार्डली 2 मिनट गया होगा, बट उसकी वो जो जर्नी थी, जिस मेहनत से जितनी गर्मी में वो चल के आए वो उनका वो हो गया। ऐसे ही आपका पढ़ाई का अगर है, पढ़ाई की मोटिवेशन भी अगर आप लोगों को, जैसे कंसिस्टेंसी की कभी किसी ने बात की थी कि कंसिस्टेंट कैसे रहें, तो उसके लिए एक बहुत अच्छा तरीका है कि ना आप अपने आप को ना टेस्ट करते रहें। वीकली आप मार्केट से पेपर्स लेके आएँ और अपने आप को, आप पेपर को बैठ के उसी एनवायरनमेंट में शांति से बैठ के रूम में उस पेपर को सॉल्व करें, फिर उसके आंसर्स करें। आंसर करके जब आपको पता लगेगा कि 100 में से आपके 20 ही नंबर आए हैं, उस दिन आप परेशान होंगे, लेकिन नेक्स्ट डे आप कंसिस्टेंट हो जाएंगे। आपको लगेगा कि यार हफ्ते में 2 दिन पढ़ने से तो काम मेरा नहीं चल पाएगा। और वो चीज़ मोटिवेटेड भी रखेगी, जब अच्छे रिजल्ट आ जाएंगे तो मोटिवेटेड रहेंगे। मैम वन मोर क्वेश्चन। मैम जब आपका यूपीएससी का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ होगा तो आपने सोसाइटी ने प्रेशर बनाया होगा कि देखो इसका तो यूपीएससी का एग्जाम भी क्लियर नहीं हुआ, फिर आप उससे ओवरकम कैसे हुए? मैंने बताया था अभी कि एक तो आई वॉज प्रिपेयरिंग इन ट्रेनिंग और घर मेरा पानीपत में था, तो मेरे लिए सबसे अच्छी बात ये थी कि मेरे घर में मेरे पेरेंट्स का इतना ज़्यादा सपोर्ट है कि वो सोसाइटी वाली चीज़ तो हम तक आने ही नहीं देते। ऑब्वियसली उन पे आती थी, बहुत ज़्यादा आती थी। जॉइंट फैमिली है हमारे गाँव में। मेरी ताऊ जी की जो बेटियाँ उनसे 6-6, 7-7, 8-8 साल छोटी थी, उन सबकी शादी हो चुकी थी जब मैं प्रिपरेशन ही कर रही थी। तो वो सारे का सारा चीज़ें आती हैं, बट वो मुझ तक नहीं आने देते थे मेरे घर वाले। अगर मुझ तक आती भी थी तो मेरी मम्मी मुझे एक बार बोलती थी हमें फर्क नहीं पड़ रहा है, ऐसे कोई हम बूढ़े भी नहीं हो रहे थे। तो उनका रहता था कि आप तुम मेहनत करो, हम खर्च करने को तैयार हैं, तुम मेहनत करो, बाकी चीज़ें हम कर लेंगे। मैम वन मोर क्वेश्चन। मैम जैसे कि मतलब आपने तैयार करा, प्रिपरेशन करी, उसके बाद मतलब आपको कभी कभी डिमोटिवेटेड फील होता होगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, अब मैं कैसे करूँ? और मतलब पेरेंट्स भी जैसे कभी सपोर्ट नहीं करते कि अब आगे, जैसे मतलब हम लोगों के टाइम में तो, आपके टाइम में तो डिस्ट्रैक्शन था नहीं, हमारे टाइम में तो बहुत डिस्ट्रैक्शन है, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, तो हम लोग इससे कैसे दूर हों? कंपल्शन थोड़ी है कुछ, आपको कोई आपको बहुत थोड़ी रहा है कि आपको व्हाट्सएप रखना ही रखना है या फेसबुक चलाना ही चलाना है। मैम कंपल्शन नहीं है, लेकिन मन करता है ना करने का, फिर उससे कैसे दूर हो? मतलब वही मैं चीज़ बता रही हूँ। चीज़ें ना हमेशा 2 तरीके की होती हैं कि आप अपनी लाइफ में किसको ओवर पारिंग इफेक्ट दे रहे हो, आप मतलब किसको आपने प्रायोरिटाइज किया, वो प्रायोरिटीज आप ही को सेट करनी पड़ेगी। वरना ऐसा भी होगा कि आप अपने पेरेंट्स आपको डांटेंगे कि तुम फोन यूज़ करती रहती हो, जब तक आपके अंदर से नहीं आएगा कॉपी के बीच में भी फोन रख के यूज़ करेगा, है ना। तो वो चीज़ें तो अंदर से ही आनी पड़ेगी, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा, प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, क्योंकि फ़ोन, व्हाट्सएप, फेसबुक ये कहीं नहीं जाएगा। आप इनसे जब जुड़ना चाहेंगे उससे भी ज़्यादा तेज़ी से आपसे जुड़ेंगे। तो मतलब ये चीज़ें ऐसी नहीं, बट अभी अगर आप इसको यूज़ करोगे तो आपका बहुत कुछ चलना चाहिए, आपके बहुत सारे साल निकल जाएंगे। मैम लोअर सोसाइटी में मतलब लड़कियों को पढ़ाते नहीं हैं और पेरेंट्स उनके मना करते हैं पढ़ने के लिए, तो आप उनके लिए क्या? मैंने अपना शुरू ही यहाँ से किया था, जब मैंने अपना बोलना शुरू किया था, इसी चीज़ से मैंने शुरू किया था कि पेरेंट्स हमेशा आपके बारे में उसी चीज़ से आपको जज करेंगे जैसा आप उनको रिजल्ट देंगे। रिजल्ट मेरा भी 4 साल तक नहीं आएगा। रिजल्ट का मतलब सिलेक्शन होता है, प्रिपेयरिंग फॉर सिलेक्शन, तो रिजल्ट मीन्स सिलेक्शन, बट मेरा नहीं हुआ था। बट 4 साल तक मैंने मेहनत इतनी की थी कि मेरे पेरेंट्स वो डिटर्मिनेड थे कि ये मेहनत कर रही है और इसको टाइम मत देंगे। तो वही चीज़ मैं बता रही हूँ, इतना हो सकता है किसी के घर की कंडीशन इतनी अच्छी ना हो कि वो दिल्ली ना बेच पाए, वो वहाँ का 18-19 हज़ार रुपये हर महीने का ना अफोर्ड कर पाए, बट घर में तो पढ़ने दे सकते हैं। आप अगर दिखाएंगे कि नहीं मुझे पढ़ना है, तो मुझे लगता है ऐसे किसी के भी पेरेंट्स नहीं होते कि ना पढ़ना। What a wonderful session. I think you all get inspired by Ma'am's words. Yes or no? Yes, ma'am. And I hope अभी जो ये 2 हाथ
सकते थे सिर्फ खाली कि यूपीएससी की या तैयारी हम सिविल सर्विसेज करेंगे या और आगे बढ़ने वाले हैं। सी स्ट्रीम डजेंट मैटर कि आपने साइंस स्ट्रीम ले लिया है, कॉमर्स ले लिया है और फिर उसके बाद आप यूपीएससी में नहीं जा सकते हैं। तो प्लीज़ वॉच इट केयरफुली, यू ऑल कैन डू इट इफ यू हैव दैट ज़ील टू कम्प्लीट। Thank you so much, ma'am. Really, we are heartfelt gratitude towards you, and I would like Principal Ma'am to please come forward to present the token of small thank you gesture from our side. And please come forward to accept it. I would also like to call Bureau Chief Mr. Atul Bharadwaj because without your team members, this project is not possible for us. Please, sir, please. Yes. Sir, first receive your thank you. I would like to request ma'am to please come forward once so that sir can also say thank you to you on behalf of all of us. Thank you so much, ma'am. Thank you, everyone. आ जाओ बच्चों, आ जाओ इधर आ जाओ, तुम लोग आगे आ जाओ थोड़ा सा, ये आप हटा दो थोड़ा सा, है ना, मैं इधर आ जाऊँ, आ जाओ बच्चों, मैं आप लोग आगे आ जाओ, फोटो वगैरह इसको करता है। बैनर प्रिंट कर लेगा। I would like to request ma'am to please come forward once so that sir can also say thank you to you on behalf of all of us. Thank you so much, ma'am. Thank you, everyone.